Hello and warm wishes to all. Myself Navneet Kumar Pandey, faculty from Electronics and Communication Engineering Department in Babu Banarsi Das National Institute of Technology and Management, which is affiliated by Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow. So I am here to teach you a subject, microcontroller for embedded system. So today in my fourth lecture, we would cover SPI, which is Serial Peripheral Interface, and I2C, that is Inter-Integrated Circuit, which is a sub-module of USCI, Universal Serial Communication Interface. So let's study in detail about SPI. SPI हमारे पास सीरियल फेरिफेरल इंटरफेस, जैसा कि हमने बात किया था कि USCI मॉड्यूल के 3 सब पार्ट हैं, UART, SPI और I2C, और ये हमारे पास जो मोड्स हैं वो हमें ये बताता है कि आपका जो भी MSP 430 है वो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करे, कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करे। तो वो हमारे पास एक सब पार्ट है विच इज कॉल्ड टू बी एज SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस. सो इन इट वर्क्स इन अ synchronous mode. In synchronous mode, the USCI connect MSP 430 to an external system via 3 pins and 4 pin. Now and compared to the UART which is having only 2 pins, RXD एंड TXD, यहाँ पे हमारे पास 4 पिन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर 3 पिन की. 3 पिन्स जनरली वी यूज इन 3 पिन्स विच आर SIMO स्लेव इनपुट मास्टर आउटपुट, SOMI slave output master input, and clock signal. Clock signal to synchronize the data between SIMO and SOMI. Next, slave transmit enable. It used, you can say that whenever there is a multiple master mode, then we use STE pin. Now, SPI mode is selected. अब ये कब हमारे पास select होगा? It is used when USSYNC bit is set. यानी जब हम इस bit को set करेंगे तो SPI mode operate करने लगेगा. और 3 to 4 पिन हम कब select करेंगे? By the help of UC modex pin. यानी 3 पिन या 4 पिन कौन सा यूज करना है, इसका जो सिलेक्शन होगा वो होगा हमारे पास UC modex पिन के द्वारा. So this is what the definition of SPI. So SPI work in either 3 pin or a 4 pin in SIMO slave input master output, SOMI and clock signal, and the 4th pin is slave transmit enable. Let's study the features. Features are first 7 or 8 bit data length. We can transmit the data either in a package format of a 7 bit or a 8 bit. Next is LSB first or MSB first. We can transfer the data either in the form of LSB, यानी LSB से डेटा पहले जाए या फिर MSB के थ्रू. Next is 3 pin and 4 pin SPI operation. Master and slave mode. There are 2 modes in which the SPI work, master mode and slave mode. Next is independent transmit and receive shift register and separate transmit and receive buffer register. यानी जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट और रिसीव करना है उस डेटा को होल्ड करने के लिए स्पेशल रजिस्टर दिया हुआ है, दैट इज अ बफर रजिस्टर. द लास्ट वन इज सेलेक्टेबल क्लॉक पोलैरिटी और फेस कंट्रोल. क्लॉक पोलैरिटी और फेस कंट्रोल की हेल्प से हम जब भी ट्रांसमीटर और रिसीवर पे डेटा देना चाहेंगे तो वो हमें बताएगा कि किस क्लॉक पल्स के एज पे हमें डेटा को कैप्चर करना है और डेटा को ट्रांसफर करना है. सो दिस इज व्हाट द फीचर ऑफ SPI. Let's study the SPI mode and operation of its signal. So there are 3 or 4 signal as we had studied, which are SIMO slave input and master output. यहाँ पे हमारे पास जो मास्टर मोड होगा, मास्टर मोड, देयर आर 2 मोड, मास्टर एंड स्लेव मोड. तो मास्टर मोड का जो लाइन होगा वो डेटा आउटपुट लाइन होगा और स्लेव मोड की जो लाइन होगी वो डेटा इनपुट लाइन होगी. नेक्स्ट है हमारे पास SOMI विच इज स्लेव आउटपुट मास्टर इनपुट. यहां पे मास्टर मोड के पास डेटा का इनपुट लाइन हो जाएगा और स्लेव मोड का डेटा का आउटपुट लाइन हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्लॉक पिन. क्लॉक सिग्नल हमेशा मास्टर मोड सेंड करेगा. सो मास्टर मोड इज एन आउटपुट ऑलवेज and slave mode is an input. Next is STE, which is the 4th signal, slave transmit enable. It use the 4th pin mode to allow मल्टीपल मास्टर. यानी हम कह सकते हैं कि जब भी आपके पास मल्टीपल मास्टर्स हैं, कि कई सारे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं जनरल वे कि कई सारे फैकल्टीज हैं जो एक क्लास पे लेक्चर लेना चाहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक समय पे एक ही आपका फैकल्टी लेक्चर लेगा, तो उस समय क्या होगा कि देयर आर मल्टीपल मास्टर, बट ड्यूरिंग दैट मोमेंट एक ही मास्टर पढ़ाएगा. तो वो मास्टर कौन पढ़ाएगा वो आपका बताता है STE, दैट इज स्लेव ट्रांसमिट इनेबल.
नेक्स्ट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसपीआई। अब बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम की, आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द यूआरट। अपर वन इज रिसीवर सेगमेंट और जो बिलो सेगमेंट है ये आपका ट्रांसमीटर सेगमेंट में है। अब जो सेंटर पार्ट है दिस इज योर एमएसपी फॉर जनरेटिंग द क्लॉक। अब डिपेंडिंग अपॉन द यूसीएसएसईएल हम यहां से कोई भी एक क्लॉक सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे, ऑक्सिलरी क्लॉक या सब मास्टर क्लॉक। बिट क्लॉक जनरेटर वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो रिसीवर का बॉड रेट है उसे मैच करने के लिए प्री स्केलर और डिवाइडर क्या करेगा, इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीजर वैल्यू दैट इज सेव्ड इन बीआरएक्स मॉड्यूल। इसके बाद आपके पास जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा यहां से क्लॉक सिग्नल, तो क्लॉक डायरेक्शन और क्लॉक की फेस पोलैरिटी ये आपका रिसीवर सेक्शन पे भी जाएगा और ट्रांसमीटर सेक्शन पे भी जाएगा, यानी ड्यूरिंग विच मोमेंट यू कैन कैप्चर द डेटा और ट्रांसमिट द डेटा, वो कौन बताएगा, क्लॉक फेस एंड क्लॉक पोलैरिटी। ये आपके पास गया, देखिएगा क्लॉक फेस एंड क्लॉक पोलैरिटी एंड क्लॉक फेस एंड क्लॉक पोलैरिटी टू द ट्रांसमीटर सेक्शन। नाउ अब बात करते हैं ट्रांसमिट स्टेट मशीन। ट्रांसमिट स्टेट मशीन जैसे ही इसका इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा, नाउ यू आर रेडी फॉर द ट्रांसफर द डेटा, तो हमारा ट्रांसमिट बफर पे जो भी डेटा होगा वो ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर पे जाएगा और एमएसबी और 7 बिट ये आपका डिसाइड करेगा कि डेटा आप एलएसबी पे देना चाहते हैं या एमएसबी पे या फिर 7 बिट या 8 बिट पे। जो आप यहां वैल्यू सेट करेंगे वही आपका रिसीवर पे भी सेट हो जाएगा। यहां से आपका डेटा ट्रांसमिट हुआ, दैट इज स्लेव इनपुट एंड मास्टर आउटपुट, यानी मास्टर ट्रांसमीटर आपका आउटपुट डेटा कर रहा है। यहां से डेटा आपने सेंड किया, रिसीव रजिस्टर उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जो भी डेटा आपने रिसीव किया आपका किस में सेव हुआ, रिसीव बफर रजिस्टर पे। जैसे ही डेटा आपका आ जाएगा उसके बाद रिसीव स्टेट मशीन वापस से एक इंटरप्ट फ्लैग सेट करेगा जिससे कहेगा कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हुआ है वो हम उसे रिसीव कर चुके हैं। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन यहां पे जो भी करेक्शन आएगा या जो भी एरर जनरेट होगा उसकी वैल्यू कौन डिफाइन करेगा, योर स्टेटस रजिस्टर। अब बात करते हैं द मास्टर मोड, यानी यहां पे हम डील करेंगे कि हमने पता था कि दो मोड्स पे ये ऑपरेट करता है, मास्टर मोड और स्लेव मोड। तो मास्टर मोड की बात करते हैं। यहां पे जो हमारा यूएससीआई मॉड्यूल है वो आपका मास्टर होगा और एक्सटर्नल जो हमारा डिवाइस होगा जिस पे हम कम्युनिकेट यानी जिसको हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा स्लेव की तरह ट्रीट होगा। देखते हैं यहां पे सबसे पहले हम मास्टर की बात करें तो मास्टर में हमारा ट्रांसमिट बफर है, यहां से हमने डेटा को ट्रांसमिट किया टू दैट ऑफ द ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर। ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर से डेटा आपका सीमो पिन के थ्रू यानी स्लेव इनपुट मास्टर आउटपुट के थ्रू आपने डेटा को सेंड किया किस पे, डेटा शिफ्ट रजिस्टर पे। जो भी डेटा रिसीव होगा स्लेव के पास, सिमिलरली वही डेटा एसओएमआई पिन के थ्रू हम उसको रिसीव कराएंगे रिसीव शिफ्ट रजिस्टर ऑफ मास्टर। अब बात करते हैं कि हम ये डेटा को रिसीव क्यों करते हैं। अब यहां पे क्या करेगा मास्टर मोड, जो भी आपका डेटा रिसीव हुआ है और जो भी आपने ट्रांसमिट किया है इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर इसमें एरर होता है तो जो एसपीआई यानी स्लेव का जो रिसीव बफर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अदरवाइज आपका डेटा अगर सेम है यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं है तो आपका डेटा जो भी शिफ्ट रजिस्टर पे है वो ऑटोमेटिकली रिसीव कर जाएगा एसपीआई रिसीव बफर में। तो ये हमारा कहलाता है मास्टर मोड इन एसपीआई। नेक्स्ट इज स्लेव मोड। स्लेव मोड आइडेंटिकल है मास्टर में, बस यहां पे क्या है कि अब जो डेटा ट्रांसमिट करेगा वो आपका स्लेव करेगा और जो रिसीव करेगा वो आपका मास्टर मोड करेगा। नाउ स्लेव का ट्रांसमिट बफर डेटा ट्रांसमिट करेगा शिफ्ट रजिस्टर को विद द हेल्प ऑफ एसओएमआई दैट इज स्लेव आउटपुट एंड मास्टर इनपुट। यहां पे डेटा रिसीव किया, जो भी डेटा रिसीव किया है वो आपका मैच होगा कहां पे, स्लेव के रिसीव शिफ्ट रजिस्टर पे। अगर ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर और डेटा शिफ्ट रजिस्टर की वैल्यू सेम नहीं है यानी कोई एरर है तो आपका डेटा मास्टर के पास रिसीव नहीं होगा और आपका जो भी स्लेव है वो दोबारा इनिशिएट करेगा फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। अगर ये वैल्यू सेम आता है तो ये एक्सेप्ट करेगा और रिसीव बफर पे भी वो वैल्यू एक्वायर करेगा। सो दिस इज हाउ द स्लेव मोड ऑपरेट। नाउ लेट्स स्टडी द कंट्रोल रजिस्टर ऑफ एसपीआई। कंट्रोल रजिस्टर की बात करें यहां पे तो कंट्रोल रजिस्टर हमने कहा है कि ये हमेशा वही बताता है कि व्हाट ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ एसपीआई। तो ये हमारा डिटेल में बताएगा कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर टोटल 8 बिट्स के होते हैं। पहला है आपके पास 7th बिट क्लॉक फेस और क्लॉक पोलैरिटी,
जो कि आपका डिफाइन करेगा कि किस ड्यूरेशन पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना है और कब डेटा को रिसीव करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूसी एमएसबी, दैट इज आप जीरोथ पे एलएसबी पे डेटा ट्रांसमिट करेंगे या सबसे पहले एमएसबी की बिट वैल्यू ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूसी 7 बिट, यानी जो भी आप कैरेक्टर फॉर्मेट भेज रहे हैं उसका जो बिट है यानी जो डेटा की लेंथ है वो आपका 8 बिट का है या फिर आपका 7 बिट का है। नेक्स्ट है हमारे पास यूसी एमएसटी। यूसी एमएसटी क्या होगा? मास्टर मोड सेलेक्ट। मास्टर मोड सेलेक्ट यानी जीरो पे जो आपका स्लेव मोड और 1 पे आपका मास्टर मोड, यानी यहां पे आप बता सकते हैं कि कौन सा मोड हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूसी मोड के बाद यूसी एसवाईएनसी, दैट इज आप कौन सी वैल्यू पे प्रोग्रेस करेंगे, आइदर यू हैव टू वर्क ऑन एसिंक्रोनस मोड या फिर सिंक्रोनस मोड। और इसमें हमने किया था कि इन एन एसपीआई ऑपरेशन वी यूज द सिंक्रोनस मोड, सो वी हैव टू सेट दिस वैल्यू। दिस इज कंट्रोल रजिस्टर ए। नेक्स्ट इज कंट्रोल रजिस्टर बी, जो कि यहां पे आपके पास दो ही ऑपरेशन है, पहला क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए और आपके पास रीसेट करने के लिए अगर कोई एरर जनरेट होता है। द रिमेनिंग बिट यानी दैट इज यू कॉल टू बी एज अ स्टेटस रजिस्टर बिट, लास्ट रजिस्टर, ये आपका बताएगा कि आफ्टर द ऑपरेशन क्या आपका रिजल्ट आया, यानी कोई एरर जनरेट हुआ है कि नहीं। दैट इज लिसन इनेबल, यानी यहां आपको बताता है कि यू आर वर्किंग ऑन अ लूप बैक मोड और नॉट। नेक्स्ट है सीएफई फ्रेमिंग एरर, कि कोई एरर जनरेट हुई है या फिर बस कॉन्फ्लिक्ट एरर हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास ओवररन एरर। ओवररन एरर हमें यह बताता है कि आपने जो भी रिसीव किया डेटा, जब तक आप रिसीव कर रहे हैं तब तक आप जो ट्रांसमीटर है उसने दूसरा डेटा सेंड कर दिया, तो यह आपका बताएगा यूसीओ, दैट इज ओवररन एरर फ्लैग। दिस बिट इज सेट व्हेन अ कैरेक्टर इज ट्रांसफर इनटू रिसीव बफर बिफोर प्रीवियस कैरेक्टर वाज रीड। एंड द लास्ट वन इज बिजी, यानी अभी आपका जो मॉड्यूल है दैट इज जो हमारा एसपीआई है ये हमारा वर्क कर रहा है, यानी इनएक्टिव मोड पे तो नहीं है, अदरवाइज इट इज ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सम इंफॉर्मेशन। So this is what your SPI. The next module is I2C, which is inter-integrated circuit. In inter-integrated circuit हमें यहाँ पे केवल दो ही वायर की रिक्वायरमेंट है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द SPI जहाँ पे हमारे पास 3 और 4 पिंस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें केवल 2 वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, which is called to be a serial data and serial clock. So in I2C mode, the USCI module provide interface with that of MSP 430 and I2C by the help of 2 wire, which is serial data and serial clock bus. Now let's study what are its features. First is it is developed by the Philips semiconductor, normally for the you can say that for low speed. Next, 7-bit and 10-bit device addressing mode. It can transfer the data in a 2 address format, 7-bit and 10-bit address format. Next one is start, restart and stop bit. Now in its character format we would study that how start bit would initiate, restart and stop bit. Multi-master transmitter and receiver mode is there, slave receiver and transmitter mode. Now स्टैंडर्ड मोड में जो इसकी स्पीड होगी वो होगी आपकी 100 kbps की, और जो फास्ट मोड की स्पीड होगी वो होगी हमारे पास 400 kbps की। नाउ इट हैव अ प्रोग्रामेबल UCCLK, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्लॉक जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिफरेंट अकॉर्डिंग हम अपने आप प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी किस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की हमें रिक्वायरमेंट है। The last one is it is designed for the low power. जैसा मैंने आपको बताया कि developed by Philips semiconductor generally for the transferring the low data and for the acquiring low power module. Now let's study the block diagram of I2C module. Again the same part, which is a receiver section, a transmitter section governing by I2C state machine, and the below segment you can see for generating the clock signal. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द USSEL हम यहां से कोई भी एक क्लॉक सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो बिट क्लॉक जनरेटर है प्री स्केलर और डिवाइडर जो रिसीवर का बॉड रेट है उससे मैच करेगा, और जो इंटीजर वैल्यू है वो इसमें सेव करने के बाद यहां से जो वैल्यू आई है वो उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद यहां से आपने क्लॉक सिग्नल को सेंड किया। अब सेंड करने के बाद यहां पे आप उसे वैल्यू देंगे और आपका जो क्लॉक सिग्नल है दैट इज
SCL, ये आपका कॉमन होगा रिसीव में भी और ट्रांसमीटर में भी। अब यहां पे आपने एक चीज कॉमन देखिएगा जो थोड़ी सी डिफरेंट है अदर देन दैट ऑफ द SPI, स्लेव एड्रेस और ओन एड्रेस। यहां पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपका ट्रांसमिट है ये एक एड्रेस भेजेगा स्लेव का एड्रेस आइदर इन अ 7 बिट और अ 10 बिट, और वहां से एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होगा दैट इज ACK। तो ये हमारे पास ये डिफाइन करता है कि क्या कोई आपने जो एड्रेस भेजा है वो एक्चुअली में एड्रेस है या नहीं है। अगर एड्रेस है तो इट विल बी इनिशिएट फॉर द डेटा ट्रांसफर, और अगर नहीं है तो यहां पे डेटा इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। सो यहां पे क्या किया, सबसे पहले हम एड्रेस भेजेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, और उसके बाद जब वहां से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आ जाएगा उसके बाद ट्रांसमिट बफर जो है आपका डेटा सेंड करेगा बाय द हेल्प ऑफ SDA line, which is a serial data line. So this is what the complete block diagram of I2C. Let's study the I2C module data transfer. यहां पे देखिएगा कि यहां पे हमने 3 फ्रेगमेंटेशन किया हुआ है, कैरेक्टर फॉर्मेट, बिट ट्रांसफर और रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कैरेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, यानी कब हमारा स्टार्ट कंडीशन जनरेट होगा और कब हमारा स्टॉप कंडीशन जनरेट होगा। यहां पे देखेंगे कि जब भी सीरियल क्लॉक की लाइन हाई रहेगी और आपकी जो SDA की लाइन है वो हाई टू लो रहेगी, तो इस ड्यूरेशन पे आपका स्टार्ट कंडीशन सेट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आपका SCL लाइन हाई होगा और आपका इसी ड्यूरेशन पे जो SDA की लाइन है वो ये फ्रेगमेंटेशन होगा, तो ये आपका इनिशिएट करेगा स्टार्ट कंडीशन। जस्ट रिवर्स ऑफ दैट, जब हमें स्टॉप कंडीशन देना है तो SCL की जो लाइन होगी आपके पास वो हाई रहेगी, बट जो SDA की लाइन होगी वो आपकी हो जाएगी लो से हाई पे, यानी स्टार्ट के लिए हाई टू लो और स्टॉप के लिए लो से हाई। नाउ अब इन बिटवीन सबसे पहले हम क्या देंगे, एड्रेस देने के बाद वहां पे अब हम बताएंगे R/W बार, यानी हम डेटा रीड करना चाहते हैं जो भी हमने एड्रेस दिया है वहां से, या फिर हम वहां पे डेटा को राइट करना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिग्नल R/W बार। उसके बाद आएगा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कि जो भी आपने एड्रेस सेंड किया है क्या वो एड्रेस वैलिड है या नहीं, तो ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। उसके बाद हम डेटा ट्रांसमिट करने लगते हैं। ये है आपका कैरेक्टर फॉर्मेट। बात करते हैं कि बिट ट्रांसफर कब होगा, यानी जो आपने डेटा सेंड किया है वो डेटा कब आपका इनिशिएट होगा, एट व्हाट क्लॉक पल्स। तो आप देखिएगा कि जब भी आपका जो सीरियल क्लॉक लाइन जब भी आपकी कहां पे होगी, लो रहेगी, उस पोजीशन पे आपका जो डेटा है वो आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर मॉड्यूल पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जब भी आपकी क्लॉक की लाइन हाई रहेगी तो इस ड्यूरेशन पे आपका क्या होगा, जो डेटा है वो स्टेबल रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है, बिट ट्रांसफर मोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, बहुत कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन पे। रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन हमें क्या बताता है कि जब भी मतलब कोई भी एक मास्टर है वो इनिशिएट कर रहा है अपना डेटा ट्रांसफर, और डेटा ट्रांसफर करते हुए वो चाहता है कि वो दोबारा से लेक्चर को कंटिन्यू करे, तो वो क्या कहेगा कि दोबारा से या तो अटेंडेंस लेगा और बिगिन कर देगा अपना लेक्चर मॉड्यूल को। तो यहाँ पे भी यही एक फॉर्मेट है कि जब आपका मास्टर नहीं चाहता है कि वो अपना फ्रेगमेंटेशन यानी अपनी जो वैल्यू है अपने लेक्चर को शिफ्ट कर दे, तो वो क्या करता है, बीच में रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन दे देगा। तो यहां पे भी वही है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट कंडीशन दिया, फिर आपने स्लेव एड्रेस दिया, स्लेव एड्रेस के बाद R/W बार, यानी आप रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, देन डेटा, अगेन एक्नॉलेजमेंट, फिर आपने दिया रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन, यानी दूसरा मास्टर उसको एक्वायर ना कर सके, वापस मैं ही दोबारा से इनिशिएट करूं। फिर से मैंने स्लेव एड्रेस दिया, R/W, एक्नॉलेजमेंट और डेटा एक्नॉलेजमेंट, और लास्ट जब वो चाहता है कि मुझे स्टॉप करना है तब वो जनरेट करेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन, यानी SCL की लाइन हाई और आपका जो SDA की लाइन है वो लो टू हाई, तो ये आपका स्टॉप। सो रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन क्या है कि जब भी आपका मास्टर जो है, यानी आप कह सकते हैं कि जो भी ट्रांसमीटर है वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई मास्टर उसको इनिशिएट कर दे डेटा ट्रांसफर, तो आप ये प्रोसीजर को एक्वायर करेंगे, दैट इज रिपीटेड स्टार्ट कंडीशन।
नाउ नेक्स्ट इज द कंट्रोल रजिस्टर ऑफ ए मॉड्यूल, यानी कंट्रोल रजिस्टर की बात करें कि कौन कौन सी हमें वैल्यू को सेट करना है ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन फॉर वर्किंग ऑफ I2C, विच आर सबसे पहले जो आपका 8 बिट का फॉर्मेट है, 7th बिट पे ओन एड्रेसिंग मोड। ओन एड्रेसिंग मोड यानी जो आप जो डेटा को सेंड करना चाह रहे हैं, जिस एड्रेस पे आपको डेटा को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, वो 7 बिट का है या 10 बिट का है। इसी तरह स्लेव पे जो डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो 7 बिट का है या फिर 10 बिट का है। तो ये आपको कौन बताएगा? UCLA 10 वैल्यू। नेक्स्ट है आपके पास UCMM यानी मल्टी मास्टर एनवायरनमेंट। आप चाहते हैं कि केवल सिंगल ही मास्टर रहे, कोई और दूसरा मास्टर इनिशिएट ना करे डेटा ट्रांसफर को, तो आप यहां पे वैल्यू 0 देंगे, अदरवाइज वैल्यू 1 प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनयूज्ड बिट, जिसका कोई यूज नहीं है, रोल नहीं है यहां पे। नेक्स्ट है UCMST, MST यूज फॉर मास्टर मोड सेलेक्ट, यानी जो आप डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो स्लेव मोड का है या फिर आप मास्टर मोड पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगेन UC मोड। अब यहां पे देखिएगा आपका एक कॉमन है यहां पे वैल्यू कि इसमें वैल्यू जो आपने लिया है 3 पिन SPI और यहां पे देखिएगा 4 पिन SPI एंड 4 पिन SPI। तो यहां पे आपके पास SPI पिन का कॉन्फ़िगरेशन होगा और जो 1 होगा ये आपका मॉड्यूल होगा I2C मश। तो यहां पे हम वैल्यू कौन सी सेट करेंगे? इस वाले की वैल्यू। नेक्स्ट है UCSYNC, दैट इज फॉर बिट 0। अगेन वी हैव टू सेट दिस बिट फॉर वर्किंग इन अ सिंक्रोनस मोड। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर B। कंट्रोल रजिस्टर B का ऑपरेशन किसके लिए? नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले UCSS-ELX यानी हमारे पास क्लॉक सिलेक्शन के लिए। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू, कौन सा क्लॉक सिग्नल यूज करना चाहते हैं? UCL के, ACL के, SMCL के या फिर SMCL के। इसकी वैल्यू एक्वायर किस पे करेगी हमारे पास? MSP 430 पे, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसके पास गवर्न होगी? बिट रेट और बॉड रेट जनरेटर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास UCTR विच इज ट्रांसमीटर और रिसीवर, यानी आप जो वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं I2C में वो आप ट्रांसमीटर का कर रहे हैं या फिर रिसीवर का कर रहे हैं। दैट मीन्स आप वैल्यू ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और किसको? स्लेव को दे रहे हैं डेटा, या फिर आप स्लेव से डेटा एक्सेप्ट करवा रहे हैं। तो ये होगा आपका UCTR, दैट इज 0 और 1 की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारे पास UCT-NACK, दैट इज ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। इसका मतलब यह है कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं, यानी आपने कोई भी एड्रेस दिया, आप चाहते हैं कि रिसीवर वहां से एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट करे या फिर कोई भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट ना करे, तो उसका जो वैल्यू होगा वो आप सेट करेंगे UCT-NACK, दैट मीन्स जनरेटिंग एक्नॉलेजमेंट सिग्नल और नॉट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। नेक्स्ट बात करते हैं UCTX-STP, दैट इज स्टॉप कंडीशन। यहां पे देखिएगा transmit stop condition in a master mode, ignored in a slave mode, in master receiving mode, stop condition is preceded by NACK। यानी यहां पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी डेटा हमने ट्रांसमिट किया है, तो ट्रांसमिट के बाद, ठीक है, आप चाहते हैं कि वहां पे स्टॉप कंडीशन की वैल्यू जनरेट हो या फिर आपकी स्टॉप कंडीशन की वैल्यू ना जनरेट हो, तो ये हम कर देंगे यहां पे। यानी ध्यान में दीजिएगा कि ये जो वैल्यू है, इस बिट की वैल्यू आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ UCT-NACK, UCTX-STP स्टॉप बिट या फिर UCTX-STT दैट इज ट्रांसमिट स्टार्ट कंडीशन। अगेन आप चाहते हैं कि स्टार्ट कंडीशन जनरेट करे बार बार, कौन? ट्रांसमीटर सेक्शन, तो वो वैल्यू लेगा, अदरवाइज वो स्टॉप कर देगा। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिट स्टार्ट कंडीशन इन अ मास्टर मोड, इग्नोर्ड इन वेयर? द स्लेव मोड। In master, the receive mode is repeated start condition which is preceded by NACK, again the non-acknowledgement signal, and your stop condition is automatically cleared after the start condition address information is transmitted. So here come under the UCSTT stop bit. Now the next one is UCWRST. WRST बिट का हम यूज क्यों करते हैं? नॉर्मली फॉर रीसेटिंग, यानी यहां पे आपके पास अगर कोई भी एरर जनरेट हुआ ड्यूरिंग दैट ऑफ वर्किंग, या आप कह सकते हैं कि आपकी कोई भी एक बिट स्टॉप हो जाए इमीडिएटली, वेयर? कहां पे? जब आपने कोई भी वैल्यू सेट किया और कोई भी एरर जनरेट हुआ या बॉड रेट की वैल्यू आपकी वैल्यू मैच नहीं कर पाई रिसीवर के से, तो यहां पे क्या होगा? एक रीसेट
जनरेट कर सकते हैं. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इनेबलिंग अप्लाइंग 1 वैल्यू और डायरेक्टली अप्लाइंग 0 वैल्यू. अगेन रीसेट की वैल्यू आप दो तरह से कर सकते हैं परफॉर्म, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? पीयूसी पावर अप क्लियर विच विल ऑटोमेटिकली रीसेट ईच एंड एवरीथिंग. और आरएसटी क्या करेगा? सॉफ्टवेयर रीसेट. सॉफ्टवेयर रीसेट आपका ये कॉन्फ़िगर कर देगा कि जो भी रजिस्टर यूज हो रहे हैं आपके I2C में, उसकी वैल्यू को क्लियर करने का काम जो है वो आपका कौन करेगा? आपका कंट्रोल रजिस्टर बी में UC WRST बिट 0. So this is what the control register B part. Next है इसी में status register, and status register is identical to that of the what we had studied in SPI mode. जैसे कि लूप बैक मोड, यहाँ पे फ्रेमिंग एरर या फिर बस कॉन्फ्लिक्ट का एरर. बस कॉन्फ्लिक्ट का एरर अगेन वही पार्ट कि अगर आपने रिसीव किया कोई भी डेटा और ड्यूरिंग दैट मोमेंट अगर कोई दोबारा से ट्रांसमीटर ने वैल्यू को सेंड कर दिया है तो वहां पे बस कॉन्फ्लिक्ट एरर जनरेट हो जाएगा. नाउ the last one is the questions part what we had covered during this slide and of that of the USCI module. The first one we had covered that explain the working of UART and explain its character format. Character format is what we had studied, the package, you can say that the frame structure transmitter to receiver. Define and explain the block diagram and the working of SPI, which is what? The serial peripheral interface. And SPI work in what type of a mode? 3 pin or 4 pin. That is slave input master output, और हम कह सकते हैं मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट और क्लॉक सिग्नल. और फोर्थ पिन हमारा कौन सा होगा? That is slave transmit enable. Concept of master and slave. Define and explain the block diagram of I2C mode, that is inter-integrated circuit. The difference between control register of SPI and I2C. Explain 7-bit and 10-bit addressing format of I2C. And the last one is the different types of selecting the baud rate. So this is what we had covered in the entire MSP 430 microcontroller. Thank you.